Hello everyone, welcome to Swiflearn, India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. My name is Jagrat and today I present to you the first video of a new topic, Central Tendency, for class 10th, ICSE and CBSE. For those of you who are new to this channel, Swiflearn provides 100% live interactive classes. Personalized attention is given to every student by having a batch limit of 6 students per batch, a dedicated acad mentor team that tracks your progress, and will cover all syllabus that is based on the ICSE and CBSE latest pattern. Also, we have detailed progress report of your journey at Swiflearn, unlimited practice test series so that you can practice yourself, and the SATs to judge yourself at national level, and subjective school exams so that we can test your answer writing skills. So those of you who have not already liked, subscribed and pressed the bell notification, please do that so that you never miss a future update. So guys, thank you all for the likes and comments on my previous videos. That really motivates me and helps me to present this new video with the quite enthusiasm that I'm having right now. Okay, so the new topic is central tendency. In your language, mostly the kids use it as mean median mode wala chapter. Okay, so this is that chapter. So I'm very really excited to present this chapter to you because this chapter is quite easy and you can just learn all the formulas and have this chapter, and not one of the marks will be reduced if you just focus on today's class. जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ फॉर्मूला बेस है. ओके, सो एक बार आपको फॉर्मूला लगाना आ गया तो उसके बाद इस चैप्टर में क्वेश्चन ले जाता है. येस, देयर आर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, सो वी विल प्रैक्टिस 1 or 2 questions of each variety and that will help you out to practice yourself. Okay, so please sit with your pen and copy because there are what do I say, there are many topics. So after half an hour or 20 minutes, whenever you feel phased out, you can look at the copy and see where the video is going. Okay, so guys, so what are we going to learn today? So we are going to define central tendency. Okay, we are going to define and explain what is arithmetic mean. Okay, and then we are going to have some numericals using the formula of arithmetic mean. And there are 3 formulas of arithmetic mean. Okay, that is one is in the direct method, one is in the shortcut method, and finally the third formula, that is step deviation method. Okay, and then we will move on to finding the arithmetic mean of tabulated data. Is it clear, beta? Okay, let's move forward. Okay, so what does central tendency have the importance in our daily life? डेली लाइफ में इसका यूज़ क्या होता है? मैंने आपको हमेशा बोला है कि मैं कोई भी क्लास पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो पहले आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक का डेली लाइफ में यूज़ क्या होता है. तो सेंट्रल टेंडेंसी का डेली लाइफ में बहुत ही कॉमन सा यूज़ होता है. आई थिंक पर कैपिटा इनकम आपने सबने सुना होगा क्लास 10th में, इकोनॉमी में या 9th में है इकोनॉमिक्स चैप्टर, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी वाला जो चैप्टर है. तो गाइस, जो व्हेन गवर्नमेंट टेक्स आउट अ डेटा लाइक पर कैपिटा इनकम, they use this central tendency measures only. Like they find the mean, median or mode of the population and their earnings, and this gives them the per capita income. In cricket match, when you compare the economy of a bowler, best average of a bowler, right? Best average of a batsman, and every other thing that is statistical, and you're having a single number for it, that is all based on the statistics only. Okay, so अगर हम simple भाषा में बोलें तो what is central tendency? The numerical expression which represents the characteristics of a group is known as central tendency. Numerical expression का मतलब क्या हो गया? The number that you are getting. Like the batting average of a batsman is 150. Okay, so इसका मतलब क्या हुआ कि numerical expression 150 हो गया, और कौन से characteristics की बात कर रहे हैं हम बैटिंग एवरेज की बात कर रहे हैं. So that is the characteristics that I am talking about. Like और कोई example हम क्या ले सकते हैं? Like your marks. Okay, your percentage is 93%, and what is the characteristics that we are talking about? Your school percentage, your subject percentage. That is the characteristics. I think we are clear on this. Okay, so we are having some more statements related to central tendency. That is, it is a single value that attempts to describe a set of data by identifying the central position of the data. ये जो पूरा डेटा है ना, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालती है, कहीं बीच का आंसर निकालना चाहती है कि आपके एक सब्जेक्ट में मार्क्स हो सकता है बहुत ज़्यादा आए हो, एक में थोड़े से कम आए हो, तो उसके बीच का आंसर जो आपका एवरेज निकलता है या जो आपकी परसेंटेज निकलती है वो आपके बीच के एवरेज की निकलती है. लाइक इफ अ स्टूडेंट इज स्कोरिंग 90, 93, 99 in a subject and 85 in a marks, so his percentage will lie between somewhere 98 and 85, somewhere between that. So that is the statistical value of that. Okay, central tendency of that value. It also gives you the summarized statistics. कैसे? आपके पूरे रिजल्ट की एक ही परसेंटेज तो निकलती है ना, पूरे रिजल्ट की 93%. तो हम वी हैव अ गेस अमाउंट दैट ओके, his all our marks are somewhere around 93 only.
So that is the summarized statistics that we are talking about. Under different conditions, some measures of the central tendency become more appropriate than the other. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा मीन, मीडियन, मोड तीनों ही आपको क्या देती हैं? सेंट्रल टेंडेंसी देती हैं. All of these three gives you the central tendency. So under different circumstances, different strategies are used. We are having a video in the middle part of the slide, which you can see to understand that which data requires which kind of, what kind of, like what, the mean thing, median thing, or the mode thing, what is needed for which kind of data. Okay. So what is average? What was average? In the previous classes you have heard about average. Average gives you the middle value from the highest or the lowest. Average never comes as the highest value of the data or the lowest value of the data. It always comes between somewhere between there. Okay. So you can say that average has a limit between the lowest value and the highest value of whatever the data is provided. So moving on to the arithmetic mean part, the main part of the chapter, the first topic of the chapter, arithmetic mean. तो देखते हैं अर्थमेटिक मीन होता क्या है. क्वाइट इजी, बहुत ही इजी टॉपिक है इस चैप्टर का ये. अर्थमेटिक मीन सिंपली इज एडिंग ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. इट्स दैट इजी. ओके, कोई इसमें कुछ नहीं करना है. ये जो अर्थमेटिक मीन है, यू कैन कैलकुलेट इट फॉर डिस्क्रीट थिंग ऑल्सो, लाइक द डिस्क्रीट डेटा एंड द कॉन्टिन्यूस डेटा एज वेल. सेकंड पॉइंट, डिस्क्रीट डेटा एंड कॉन्टिन्यूस डेटा. अब डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? लाइक इफ यू आई एम कैलकुलेटिंग द height of the students, so I can say that how many students are having height between 160 and 165? 10 students. How many students are having height between 165 and 175? 20 students. So this is continuous data. And discrete data is how many like how many clothes did you bought of rupees 500? So 5 clothes. How many clothes have you bought of rupees 1000? 7 clothes. So that is the discrete data, like one digit and one digit that way. So simply you can note down this formula. Like mean of the n numbers, like number of observation you are having, 10, 20, 30, 40, and these are the observation, like first observation x1, x2, these are the frequencies. Add of the observation divided by 10, like 10 or whatever the number you are having, and you will get the mean. This sign, इस साइन से डरने की जरूरत नहीं है. जो उल्टा ई जैसा साइन है इसको बोलते हैं सम ऑफ. ओके, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, समीशन बोलते हैं इसको. तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, उल्टा ई का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल एक्स. इतना लंबा लिखने के बजाय हम क्या बना देते हैं? ये वाला साइन बना देते हैं. क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके, सो नाउ लेट्स विजुअलाइज कि अर्थमेटिक मीन काम कैसे करता है. ओके, सो वी आर हैविंग अ स्लाइड फॉर यू. ओके, देखो यहां पर 7 डिजिट्स का डेटा है. लाइक सो 7 पीपल आर हैविंग अ डेटा, रैंडम डेटा है. 9 पे 1 है, 2 10 है हमारे पास, एक 11 है, एक 13 है और एक 18 है. ओके, सो दिस इज द डेटा. सो लेट्स कैलकुलेट द एवरेज मीन. सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल. सो 7 things were there, 1 2 3 4 5 6 7. Sum of all divided by number of all. So you are getting a mean. C central number आ रहा है ना, 9 lowest है, highest 18 है, कहीं बीच का एक नंबर आ रहा है. राइट, एक बार डेटा चेंज करके देखते हैं, 6 डिजिट्स लेके देख लेते हैं. ओके, क्वेश्चन चेंज हो गया हमारा, रैंडम डेटा एक भी आ गया. देखो अब देखो कितना फैला हुआ है. फ्रॉम 2 to 20 वी आर हैविंग दिस, एंड लेट्स फाइंड द अरिथमेटिक मीन. सो इट इज समवेयर बिटवीन 9, क्योंकि देखो 2 से स्टार्ट हुआ, 20 तक गया, तो 10 ही तो है समवेयर बिटवीन. तो देखो आपका आंसर आ गया. राइट, यू विल ऑलवेज गेट सेंट्रल टेंडेंसी. टॉपिक का नाम ही वही है इसी रीजन की वजह से. ओके, सो इस डेटा के लिए, लाइक ये वाला डेटा है, इसमें आप मीडियन निकाल नहीं पाओगे क्योंकि अभी आपने मीडियन पता नहीं, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो. जैसे मोड, चलो मोड से एग्जांपल देता हूं मैं. मोड क्या होता है? जो चीज सबसे ज्यादा बार आ रही है. इसमें कुछ सबसे ज्यादा बार आ रहा है? आ ही नहीं रहा है कुछ, मतलब सब कुछ एक ही बार आ रहा है. तो मोड तो इसमें सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए काम ही नहीं करेगा ना, क्योंकि मोड कहता है जो भी चीज सबसे ज्यादा बार आ रही है वो आपका मोड है. इसमें तो कोई सबसे ज्यादा बार आ ही नहीं रहा है ना. तो इसी तरह डिफरेंट डेटा के लिए डिफरेंट चीजें वर्क करती हैं. जैसे इस डेटा के लिए मोड वर्क करेगा ही नहीं. क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, सो एक बार और कुछ चेंज करके देख लेते हैं. चलो 5 डिजिट्स लेके देख लेते हैं. चलो 10 लेके देख लेते हैं. ओके, ये आपके 10 वैल्यूज हो गए. ठीक है, सबको हमें ऐड करना है और बीच का नंबर आ रहा है. देखो 4 और 19 के लगभग, लाइक दूर से भी देखोगे तो दिख रहा है कि समवेयर बिटवीन. अगर किसी को लग रहा है कि सर यहाँ आना चाहिए था, तो बेटा यहाँ पर वैल्यूज ज्यादा है, इस वजह से इधर को थोड़ा सा शिफ्ट हुआ हुआ है कि 13 के आसपास सारे नंबर्स होने चाहिए यहाँ पर. क्योंकि जो छोटे नंबर्स हैं, लाइक वो देखो कमी है, 4 वाला नंबर एक ही है आपके पास, उससे छोटा कोई नंबर नहीं है. मोस्टली नंबर्स जो है वो 10 से ऊपर है, इस वजह से जो एवरेज है वो 13 के आसपास आ रहा है. ओके, आई होप आप लोगों को ये मिनिएचर सा टॉपिक समझ में आया होगा. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देख लेते हैं. ओके, ओके, सो फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. डेटा में माइनस साइंस भी हैं. ओके, सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल
तो सम ऑफ ऑल जिसको लग रहा है कि सर यहाँ पर माइनस का साइन क्यों है, तो बेटा इंटीजर्स चैप्टर याद करो. इफ आप इसको लिखते सम ऑफ ऑल में, तो क्योंकि 6 के पास माइनस है तो आप क्या लिखते हैं, प्लस का साइन लगाते, ब्रैकेट में लिखते हैं -6. तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर आप करते हैं 22 प्लस -3. So what is plus minus minus? So that is minus. So that's why you're getting that. Okay, is it understandable? I hope that is. Okay, so now after adding all this, like doing the integer thing, like add this, this and this, then subtract it from this and this, like total of this. This will give you a -9, and similarly this will give you, and you will have the answer that is 32 divided by 5. So the answer is 6.4. ये आपका मीन आ गया. सिंपल सा डेटा, अनग्रुप्ड डेटा है ये आपका. ठीक है. एक सिंपल से लाइन में दिया हो, हाँ इसको अनग्रुप डेटा बोलते हैं. ठीक है. तो बुक में कभी लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो ना, अनग्रुप डेटा इसी को बोलते हैं. ठीक है. मूविंग ऑन, द सेट ऑफ स्कोर्स, ये आपको स्कोर्स देखे हैं. अब इस बार टीचर ने आपको थोड़ा सा ट्रिक करने के लिए क्या दे दिया, बीच में एक्स दे दिया. तो आप लोग तो डर जाओगे, लेकिन डरना नहीं होता है. जिसने मेरी क्लास पढ़ी किसी को डरने की जरूरत नहीं है. मैथ्स में डरने की जरूरत ही नहीं होती. जिसको फॉर्मूला पता है उसको डरने की जरूरत नहीं है. जैसे कहते हैं ना भूत वाली पिक्चरों में, जिसके पास क्रॉस है उसको डरने की जरूरत नहीं है. तो जिसके पास मैथ्स में फॉर्मूला है उसको डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैथ्स में फॉर्मूला जिसको पता है उसको डराने का एक ही काम कोई कर सकता है, उस फॉर्मूले में से कोई एक चीज़ क्या कर दे, गायब कर दे. लेकिन जिसको एक्स नहीं पता है वो अलजेब्रा जानता ही है. अलजेब्रा से हम लोग एक्स निकाल सकते हैं. तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल इक्वल्स टू 5. मीन हमें दे रखा है, तो अपने को यहाँ तक तो डरने की जरूरत है नहीं. इससे आगे भी सवाल हो ही सकता है. वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर विदाउट हैविंग अ पैनिक अटैक. ओके, सो जस्ट सॉल्व वॉट एवर यू कैन. यू कैन सॉल्व दीज नंबर्स राइट. ओके, add them, subtract them, and you will get an answer that is 26. Okay, so we have reached till here without having a panic attack. So now what we know according to algebra, like this number will go here and be in the multiply thing, because 6 is divide here, right? So 6 multiplied by 5 will give you a 30. And 26 plus x is equals to 30, and this 26 will jump here with a negative sign. So that's why you are having 30 minus 26 and you will having a 4. So x जो है आपका 4 आ रहा है. ठीक है. आई थिंक आप लोगों के बात समझ में आ रही होगी. आ रही है समझ में? ईजी सी बात है बेटा. मीन का ही फॉर्मूला बार बार लग रहा है, सिचुएशंस चेंज हो रहे हैं, सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं. मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल. ये एक एक्स गायब कर दिया गया था आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा पैनिक अटैक देने के लिए, लेकिन हमने बहुत ईजिली इसको अवॉइड कर दिया. ओके, सो नाउ दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकियर क्वेश्चन. इसमें थोड़ा सा ध्यान देना. जो लोग अटेंटिव होकर नहीं बैठे हैं, तकिया पे सर रख के बैठे हैं, प्लीज़ उठ के बैठ जाओ. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आ सकता है. ओके, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस फॉर यू. ओके, ट्राई तो क्या पूरे सॉल्व कर देंगे, लेकिन फिर भी यू हैव टू फॉलो दिस क्वेश्चन. ओके, जिन लोगों को लगता है वो एक बार खुद ट्राई करना चाहते हैं, प्लीज़ गो अहेड, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. थोड़ा आधे रास्ते तक तो पहुँचो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. नथिंग टू वरी अबाउट. जस्ट पुट द फॉर्मूला, जस्ट पुट द फॉर्मूला. वेरी फर्स्ट थिंग यू कैन डू इन एनी क्वेश्चन इज जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड यू विल रीच द आंसर. ओके, सो मीन ऑफ 40 numbers is 37.5. okay, so like I can say, okay, total observations, total observations are how much, 40. Okay, and then the mean of 40 observations is 37.5. I think that is clear. Okay, so total of observations divided by number of observations, right? So this will give you the mean. ये mean का तो फॉर्मूला है, ये mean ही तो देने वाला था आपको, है ना? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, आई एम सॉरी. सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको क्या पता है, नहीं पता है, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओबीएस लिख दे रहा हूँ मैं ऑब्जर्वेशंस को. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे पता है 40 है, और मीन मुझे पता है कितना है, 37.5 है. ठीक है, तो ये डेटा आपको क्या दे देगा, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन दे देगा. टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये अभी मैंने खाली फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा है, मैंने फर्स्ट सेंटेंस से यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैंने आगे का क्वेश्चन भी पढ़ा ही नहीं है. ठीक है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको सबूतों के साथ कैसे काम करना होता है. द एविडेंसेस दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन आर सपोज टू बी यूज्ड इन दिस वे. सिंगल लाइन कैन गिव यू दिस मच ऑफ इन्फॉर्मेशन. ओके,
So this is giving you 1500. Total of observation is 1500. अब आगे पढ़ते हैं. If one of these observation is taken as 53 instead of 35. अब वो कह रहा है जब उसने ये सारा डेटा नोट किया था तो उसने एक ऑब्जर्वेशन को गलती से क्या लिख दिया था, 35 लिख दिया था, जो कि 53 लिख दिया था, जो कि क्या था, 35 था. तो उसके टोटल में ही तो फर्क आया होगा. जब आपने एक नंबर जो 35 था उसको गलती से 53 लिख दिया तो आपके टोटल में फर्क आया होगा. तो आपको कुछ करेक्शन करना है. ठीक है, तो आपको करेक्शन कितने का करना है, कुछ ज्यादा आपने लिख दिया ना, 35 लिखना था 53 लिख दिया, तो कुछ ज्यादा लिख दिया है. ओके, सो हाउ विल लाइक improve our mistake, we will reduce something. So how much to reduce? So 53 minus 35, this will give you 18. So you are having 18 extra in this total. So corrected total. Now what I will write? Corrected total. So corrected total क्या होगा, 1500 minus 18. आपने 18 ज़्यादा लिख दिया था ना, क्योंकि लिखना तो कितना था, 53 लिखना था आपने, 35 लिखना था आपने, क्या लिख दिया, 53, 18 ज़्यादा लिख दिया. So now we will reduce it and you will get a total of 1482. Okay. After that, moving on, you will have like the new mean. You can say new mean or the corrected mean. जो उनमें से आप जो भी कहना चाहें, चलो corrected mean कह लेते हैं. Corrected mean. This will be 1482 divided by 40. Total number of digits तो 40 थे. This will give you the answer 37.05. This will be your answer. ठीक है, आई थिंक सब क्लियर है. टोटल ऑब्जर्वेशन 40 थे, मीन पता था, तो ये बात तो याद ही कर लो, ये तो आप हर क्वेश्चन में निकाल सकते हो. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइक टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये आपको हर क्वेश्चन में परेशान करेगा. ये तो याद कर ही लो कि जब भी आपको टोटल दिया होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं और मीन दिया होता है, तो आप सम ऑफ ऑल तो निकाल ही सकते हो. ये हर क्वेश्चन के लिए याद कर लो, गांठ बांध लो कि सम ऑफ ऑल निकालना बहुत ईजी होता है इफ यू आर गिविंग द नंबर ऑफ टोटल थिंग्स एंड द मीन. So you can easily find out sum of all observations. This correction हमने क्या किया, it was noted 53 instead of 35, तो 18 extra आ गया था. So corrected total कितना हो गया, 1482. Divided it by the number of observations and you will get the right answer. Okay, is it clear? Okay, जिसको clear हुआ है प्लीज जल्दी से एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ो. Okay, that really motivates me. Okay, सो लेट्स मूविंग ऑन. बहुत अच्छा लगता है बेटा जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट छोड़ते हो कि सर समझ में आ रहा है, सर ये अच्छा लग रहा था, ये ट्रिक अच्छी थी. तो इट रियली हेल्प्स अस टू कीप गोइंग. वरना इतनी लंबी लंबी यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड करने में बहुत एग्जॉशन होता है, क्योंकि पूरे टाइम हम ही बोल रहे होते हैं. ओके, सो ऑल द नाइसेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज राइट अ स्वीट कमेंट और प्रेस अ लाइक बटन, एंड दोज हु हैव नॉट प्रेस द बेल नोटिफिकेशन प्लीज प्रेस दैट सो दैट यू डोंट मिस द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if half yearly exam of class 9, the mean marks obtained by the boys is 52 and the mean marks obtained by the girl is 48. बॉयज का जो मीन है वो दे रखा है, बॉयज के मार्क्स का मीन. गर्ल्स ने जो मार्क्स अपनी क्लास में ऑब्टेन करें उसका मीन दे रखा है. पूरी क्लास का मीन दे रखा है जब सबको साथ में काउंट किया गया 50.5. तो उन्होंने कहा है रेशियो ऑफ गर्ल्स और बॉयज निकालो. ओके, तो ऐसे क्वेश्चन देखने से तो सॉल्व होगा नहीं, है ना. तो जल्दी से एक व्हाइट बोर्ड प्रेजेंट करते हैं, उसको करना स्टार्ट करते हैं. मैथ्स के क्वेश्चन से डर खत्म तभी होगा जब सीधे लिखना स्टार्ट करोगे, क्योंकि हर चैप्टर में एक ही फॉर्मूला लग रहा होता है यार गिन के. सो जस्ट अटैक द क्वेश्चन. द ओनली वेपन यू हैव इज द फॉर्मूला दैट यू आर हैविंग. ओके, सो जस्ट राइट वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड फिगर आउट दैट वेयर दैट थिंग विल गो इन द फॉर्मूला. दैट इज द ओनली टिक आई कैन गिव यू. एक वेपन आपके पास है फॉर्मूला. जो भी क्वेश्चन में डिटेल दी है उसको जल्दी से जल्दी उस फॉर्मूले में फिट करने की कोशिश करनी है. तो वो डिटेल्स लिख तो लो एक जगह, तभी तो पता चलेगा कि फॉर्मूले में कहाँ फिट होंगी. ओके, सो व्हाट वी आर गिवन इज मीन ऑफ मार्क्स obtained by boys. ये हमें दे रखा है by boys. Okay, that is 50 I think 52. ठीक है. सो मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन का फॉर्मूला क्या था, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज divided by total number of boys. Okay, so mean is 52. Total marks of boys I don't know, so I'm writing total of boys for that, divided by total number of boys I don't know, I am denoting that with B, capital B.
टोटल नंबर ऑफ बॉयज को मैं डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल बी से. सो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज क्या हो गया, टोटल मार्क्स बाय बॉयज इज इक्वल्स टू दिस बी विल गो हेयर, मल्टीप्लाई होने चला जाएगा. तो 52 इंटू बी क्या आ जाएगा, 52b. ओके, जिसको एक्स वाई लेके करना है वो एक्स वाई लेके भी कर सकता है इस क्वेश्चन को, कोई बाउंडेशन नहीं है. बस आपको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, लेट द टोटल नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई. सो सेकेंड चीज आपको क्या दी गई थी, मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स, ये आपको दी गई थी सेकेंड चीज, दैट इज 40. ये तो दिया गया था, 48 दिया था, आई एम सो सॉरी. ओके, सो अगेन मीन का फॉर्मूला क्या होगा, मीन इज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स. ठीक, तो मीन वॉज 48, टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स को मैं लिख दे रहा हूँ टोटल मार्क्स गर्ल्स, और जैसे मैंने बॉयज़ को बी से डोनेट करा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को मैं किससे डोनेट कर रहा हूँ, कैपिटल जी से डोनेट कर रहा हूँ. तो अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप ये जी यहाँ चला जाएगा. सो टोटल मार्क्स बाय गर्ल्स कितना आ गया, 48 जी आ गया. ये दो वैल्यूज आप याद रखो. टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज हमने निकाल लिया है 52G, 52B आई एम सॉरी, एंड टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स हमने निकाल लिया 48G. एक्स और वाई लेके भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है अपने स्कूल टीचर से कि सर मेरे सर जागृत सर ने तो बी और जी बताया था, आप एक्स वाई बता रहे हो. ओके, ये नोट कर लिया. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, टोटल मार्क्स लाइक मीन of marks obtained by whole class. Whole class, that is total marks girls plus boys divided by total number of girls and boys, यही होगा. सो मीन इफ आपको याद हो पिछली स्लाइड से, इफ यू रिमेंबर इट करेक्टली, सो मीन था 50.5 ऑफ होल क्लास. टोटल मार्क्स अभी हम लिखेंगे, टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज. तो गर्ल्स को मैंने क्या लिया था, बी और जी लिया था, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज ये हो गया. ठीक है, अगले स्टेप में यहाँ चला जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया 50.5 इज इक्वल्स टू बी लाइक इंटू बी प्लस जी, और टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितनी थी 48G, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज कितने थे 58B. रिमेंबर, oops, 52B. 52B. ठीक है, अब जो है वो थोड़ा सा नो ग्रेनर है, कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 50.5B प्लस 50.5G इज इक्वल्स टू 48G प्लस 52B. So now like moving things here and there, so here I will get 50.5G minus 48G is equals to 52B minus 50.5B. So this will give you 2.5G and this will give you 1.5B. So boys to girls का रेशियो निकालना है, तो boys न्यूमरेटर में रहेगा, तो इस वजह से 2.5 ये रहेगा, 1.5 इसके नीचे आ जाएगा और B by G आ जाएगा. फास्ट हो गया. तो बेटा ये मल्टीप्लाई में तो होता है ये, तो जब ये इधर जाएगा तो डिवाइड में ही तो चला जाएगा, और ये जी यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा. तो गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो क्या आ रहा है, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो 5/3 आ रहा है. 5 की टेबल, 5 5 25, 5 3 50, ये आपका आंसर है. ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन लिखी थी
लाइक द मीन ऑफ द बॉयज, उससे मैंने ये वाला डिजिट निकाला, टोटल ऑफ बॉयज 52b। जो सेकेंड लाइन थी द मीन ऑफ द गर्ल्स, उससे मैंने ये वाला नंबर निकाला 48g, और मैंने टोटल गर्ल्स और बॉयज़ को क्या लिख दिया b+g, और मुझे मीन ऑफ टोटल क्लास दिया हुआ था। ठीक है, मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए वो जो पीछे वाला स्टेप है वो पूरा सा करना पड़ा था। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी राइटिंग के अलावा? ओके, डोंट वरी, धीरे धीरे आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स और अच्छे आते रहेंगे ना, मेरी राइटिंग भी अच्छी होती रहेगी। ठीक है, तो खूब सारे लाइक्स और कमेंट्स करते रहो। ठीक है, एंड इट विल गेट बेटर, आई प्रॉमिस यू दैट। ओके, सो दिस वॉज योर आंसर। ओके, सो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से एक बार रिवाइज करते हैं एक वीडियो के थ्रू, क्योंकि बेटा देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है, इसी वजह से एक विजुअलाइज वीडियो आपको दे रहे हैं। इस वीडियो में बेटा पेन और कॉपी लेके बैठना, मैं वीडियो के बाद पूछूंगा आपसे कि वीडियो में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जाएगी कि किस वैरायटी के डेटा के लिए हमें कौन सा डेटा यूज़ करना होता है। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट द वीडियो, जस्ट अ सेकेंड। Sometimes we need to choose what average to use to analyze data in order to get the most believable result. There are a lot of averages, and you can always construct your own for your problem. But here are all three most common ones: mean, median, and mode. Mean is just a sum of all values in a data set divided by their number. For example, take a look at this set. These are the ages of children who took part in a maths competition. Let's find the mean. To do that, we add all the numbers together and divide them by the total number of values. So our answer in this case is 13. Median is the middle value in an ordered data set. Let's try to find the median age of children from our maths competition. Here we can see that 14 is the median value of the set. Mode is the most frequent score of a set. In the case of our children, the mode is also 14. As you can see, average values can be very similar or even the same, but there are situations where some of them fit the purpose better than others. For example, if we are trying to find a measure of central tendency for categorical data, we can only use mode. That's because we don't have values to calculate the mean or to order them in a set to find the median. Consider this: students from the same class were asked what their favourite pet was, and here are their answers. We can easily notice that most of the students preferred dogs, so we can conclude that this is the mode of their pet preference. If our variable is ordinal, we can order values to find the median, and it will serve as a much better estimate than the mode. For example, if we look at the results of a questionnaire with the ages of respondents, we can see the tendency by ordering them and finding the median of an ordered set. So here, our median is teenager, although there are more children than teenagers and the mode would be child. But as we can see, the median is closer to the real tendency than the mode in this example, and this will be the case for most of the ordinal variables. Now, if we have an interval variable, we have a possibility of calculating it, so the most credible average here is the mean. Let's imagine in the previous questionnaire we asked for an exact age and got the following results. So our mean here is 13. But the mean has one bug: it's too sensitive for the outliers. Imagine that in the previous example, the ages of adults were 71, 74, and 82, not 21, 24, and 22, so much older. If we count the new average now, we get 29, not 13, as the first time. This situation is almost the same as the previous, but our mean has changed so much. That's why, if our set is skewed, it's better to use the median instead of the mean, which in our case is 12.5. There are many other situations and their corresponding averages, but in most cases, for a fast evaluation, you can apply the following rules that we've learnt from this lesson. For the categorical variables, use mode. For the ordinal variables, use median. For interval variables that are not skewed, use mean. And finally, for skewed interval variables, use median.
सो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. ओके, सो जिन लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ आफ्टर द क्लास गो टू www.swiflearn.com और अपना फ्री ट्रायल बुक करो ताकि आप देख सको कि वन ऑन वन क्लास इंटरेक्शन कैसा होता है. ओके, सो मूविंग ऑन, मैंने पिछली वीडियो में जो इन्होंने बताया, इन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया कि वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया गया था क्या कि डिफरेंट वैरायटी का डेटा, उन्होंने 4 टाइप के डेटा की बात करी और किसमें मीन, मीडियन, मोड किस तरह से वेरी करता है एक सेंट्रल टेंडेंसी निकालने में, इस बारे में समझाया गया. ठीक है, अगर जो मैंने अभी बोला आपको लगा कि नहीं सर वैसी कोई बात नहीं हुई थी, तो प्लीज़ गो बैक टू द वीडियो, उसे फिर से देखो, स्लोली देखो और आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, ओके, मूविंग ऑन. अरिथमेटिक मीन ऑफ अ टेबुलेटेड डेटा. ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन एक टेबल के फॉर्म में अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे, तो वो निकालने के 3 मेथड्स होते हैं. देयर आर 3 मेथड्स टू डू दैट. वन इज द डायरेक्ट मेथड, other one is the shortcut method, and the third one is the step deviation method. Okay, so what is the direct method? तो direct method के steps के लिए आपको 3 कॉलम्स बनाने होते हैं. पहले कॉलम में आप x लिखते हो, आपका वेरिएबल, लाइक हाउ what are the different class intervals that are given. Okay, सेकेंड स्टेप जो सेकेंड कॉलम होता है उसमें आप फ्रीक्वेंसी लिखते हो और थर्ड कॉलम में आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखते हो. ठीक है, सेकेंड कॉलम में आप लाइक इन द सेकेंड कॉलम यू फाइंड आउट समीशन ऑफ f, सम ऑफ ऑल f. थर्ड कॉलम में आप निकालते हो सम ऑफ ऑल एफ एक्स और फिर मीन के लिए आप दोनों को क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो. सम ऑफ ऑल एफ एक्स लिखने की बजाय समीशन का साइन लगाया जाता है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है. नो नीड टू गेट स्कैर्ड ऑफ दैट. सिमिलरली सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म, लाइक शॉर्ट सिंबल फॉर दैट. सम ऑफ ऑल, इट इज अ समीशन सिंबल. Okay, so now let's have a real life example, like ERF question. Okay, so these are your class intervals, like class mark you can say 5, 15, 25, 35, 44, 5.5. Okay, so this is the tabulated form. 5 and 14, 15 and 16, 25 and 20, 35 and 30, and then we have to multiply all these. So you will be getting these numbers. Now adding them will give you 270, 2750 and 100. And ये बहुत easy question होता है. 100 आने में तो फिर उसके बाद आपको डिवाइड करना ही नहीं है. ठीक है, सीधे डेसिमल लगाया करो. हमेशा याद रखो जब डाउन साइड में 100 आ रहा है या 10 आ रहा है, डोंट नीड टू डिवाइड, जस्ट सीधे क्या लगाओ, एक डेसिमल लगा दो. और स्टैटिस्टिक्स के आंसर डेसिमल में ही निकालना काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि ये डेटा का आंसर है. ठीक है, परसेंटेज में आता तो काफ़ी अच्छा लगता है, फ्रैक्शन में मत छोड़ना. ओके, सो मूविंग ऑन, we have another video showing you the importance like the direct method and the different kind of methods. Okay, let's see the video and then let's talk about it. In this video, we are going to look at how we can find the mean from data in a table. A mean is commonly associated with the term average and is found by dividing the sum total of values by the number of values themselves. The easiest mean questions involve simply adding given data and dividing by the total, such as this question here. Finding the mean from a frequency table takes a little more consideration in finding the mean from a basic list of data. Consider this frequency table, showing the data for points scored in a game. By understanding that the frequency says that score 1 occurred 2 times, score 2 occurred 5 times, etc., we can imagine the data forming a list like this. We can then simply add and divide by the number of values. However, this method will become too time-consuming with larger quantities, so we can add 2 additional parts to our initial frequency table. The first addition is a column to the right, which we label fx. Fx stands for the frequency f multiplied by the value x. In this case, points scored. By adding this, we are speeding up the process of collecting values. The second addition is a total column. We still require the total points scored divided by the total count to find the mean, and having these columns helps us to keep track of this. Have a look at this frequency table showing the number of pets people have. We have included the fx and total columns for you. Pause the video and have a go calculating the mean. Let's see how you did. To find the fx values, we need to multiply our number of pets, x, by the frequency, f.
That should give you these values. We can then complete our totals. We can then divide the total pets by total frequency, in this case, the people in the survey, to get the mean value, 1.95. ओके गाइस, जिन लोगों को समझ नहीं आया कि वीडियो किस बारे में थी, ओके उनके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बेटा सिंपल सी बात उन्होंने एक बताई कि क्यों हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे आपकी जो f है और यहाँ पर x होता है, तो आपको यहाँ पर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, तो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है कि 1 जो है वो 5 टाइम्स आया, 2 जो है वो 2 टाइम्स आया और 3 जो है वो 1 टाइम आया। तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको 1 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 5 बार लिखना पड़ेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। और 2 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स, एंड देन 3 एक बार, फिर उसके बाद उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये काम आसान कैसे हो जाता है, जब आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हो, यहाँ पर 8 आ जाता है और इनको मल्टीप्लाई करते हो, 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आएगा, 5 ही तो आएगा, तो 5 इंटू 1 5 आ गया। 2 प्लस 2 4 आता है, तो 2 2 ज़ा 4, एंड 3 तो 3 रहता है, फिर इसको ऐड करके। सो इसी वजह से इन्होंने बताया कि 5 जो एफ है वो क्यों आता है। ओके, आई होप अब बातें क्लियर होंगी, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द न्यू मेथड, दैट इज द शॉर्टकट मेथड। और बेटा ये न्यू मेथड नहीं है, अगर आप ध्यान दोगे, जिसको ये बात लॉजिक समझ में आ रहा है कि ये न्यू मेथड क्यों नहीं है, वो ही ध्यान से देख रहे हैं मेरी वीडियोस को। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो तो शॉर्टकट मेथड जो है ये एक तरह से नया मेथड नहीं है। अब हम 4 कॉलम्स ऐड कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहला कॉलम x का ही रहेगा, दूसरा f का रहेगा। अब हम एक अज्यूम मीन यूज कर रहे हैं क्योंकि अब डेटा बहुत बड़ा हो जाता है। ये जो अज्यूम मीन मेथड है ये तब यूज होता है जब आपका x बहुत बड़ा हो, तो मल्टीप्लाई करने में जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। इसीलिए हम अज्यूम मीन लेके एक कॉलम और बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं, डी बोलते हैं। देन हम FD निकालते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं तो आई थिंक ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, बजाय ये स्टेप्स देखने के। बस चलो ये फॉर्मूला भी आप एक बार एग्जाम्पल के थ्रू ही समझो। देखो इसमें x आपके कितने बड़े बड़े हैं ना, 65, 66, 67, 68, 69। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 65 इंटू 68 कितना बड़ा नंबर आ जाएगा यहाँ पर, 66 इंटू 6 बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। x इंटू एफ ही तो करते हैं, फिर उसके बाद टोटल और बड़ा आ जाएगा, उसको फिर डिवाइड करना है। ओके, तो ये सारा मैटर को थोड़ा ईजी करने के लिए एक मेथड निकाला गया, जिसको शॉर्टकट मेथड ये लोग बोल रहे हैं, अज्यूम मीन मेथड भी बोला जाता है कुछ कुछ बुक्स में। सो आपको एक अज्यूम मीन ले लेना है। अब हाउ विल यू टेक द अज्यूम मीन, वॉट एवर इज द मिडिल वैल्यू, no don't worry, whatever is the middle value is that is your mean. Okay, so for example, if there was like one more value here, like for example let's take 72. Okay, so between these two values you can take any one of it. Okay, I usually prefer the bigger value. Okay, but since यहाँ पर 5 values ही हैं, तो जो बीच वाली वैल्यू है वही आपका क्या हो जाएगा, assumed mean हो जाएगा। I think that is clear. First step is clear. How to take assumed mean, जो भी मिडिल वैल्यू है वो x की, वो आपका क्या हो जाएगा, अज्यूम मीन हो जाएगा। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। ओके, सो अब ये अज्यूम मीन का करना क्या है, इसको आपको हर x से माइनस करना है। 67, 67, 67, 67 एंड 67, दिस विल गिव यू दिस लाइन। ओके, सो 65 माइनस 67 माइनस 2, so 65 minus 67 minus 2, 66 minus 67 minus 1, 67 minus 67 0, 68 minus 67 1 and 69 minus 67। अब देखो नंबर्स कितने छोटे हो गए, -2 1 0 1 2। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको x से, नाउ मल्टीप्लाई देम। 8 into 2 -16, 6 into -1 -6, 4 into 0 0, 4 into 1 4, 3 into 2 6। Now add them all, you are getting a number that is 12 minus 12। I think that is clear। ओके, अब आपने क्या किया, आपने ये जो a है ये माइनस किया ना सारे वैल्यूज से, तो जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला था जिसमें सिर्फ x अपॉन f आता था, इसमें अब fd आ जाएगा। ओके, जो आपका लास्ट कॉलम बना है उसका सम, और ये डिवाइड होगा f से और प्लस एक a आ जाएगा, क्योंकि आपने a सारी वैल्यू से माइनस किया था ना। तो अब आपका जो भी आंसर आ रहा है उसमें आप a क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। इस कैलकुलेशन को करने का एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस 25 में ना मैं 4 इंटू कर दे रहा हूँ, उससे मुझे क्या फायदा होगा ना, अपॉन में 100 आ जाएगा। सो दिस विल बिकम -48 एंड अपॉन में आई विल हैव व्हाट, इन अपॉन आई विल हैव 100, है ना। सो ये सिंपल से क्या आ जाएगा, 0.48। सो ज़्यादा काटा पीटी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। यू विल गेट 0.48, 67 से 0.48 को माइनस करो एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। अच्छी लगी ट्रिक?
ओके अच्छी लगी तो कमेंट में बताना कि अच्छी लगी सर। ओके सो स्टेप्स डेविएशन मेथड। ओके स्टेप डेविएशन मेथड क्या है? ये पिछले वाले मेथड का भी और शॉर्टकट है। जैसे पिछले वाले मेथड में जब आपने डी वाली लाइन क्रिएट करी, अगर तब भी बड़े नंबर्स आ रहे हैं तब हमें क्या करना है, तो ये वाला मेथड काम आता है। इसमें 5 कॉलम्स हो जाते हैं, ठीक है। अगेन हम स्टेप्स को थोड़ा स्किप करके रियल लाइफ एग्जांपल से समझ रहे हैं, तो थ्योरी से बेटर आपको समझ में आएगा, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। ये आपके एक्स हो गए, देखो एक्स और ये सब बड़े बड़े आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी इतनी बड़ी बड़ी है यार, क्या करें आपकी, ठीक है। तो यहां तक के 3 कॉलम तक का तो पार्ट सेम है, 3rd कॉलम तक तो आपको सेम आना है, 3rd कॉलम तक तो आपको सेम आना है, ठीक है। -60, ये जो एक अज्यूम मीन इन्होंने 70 ले लिया, क्योंकि देखो 3 4 5 6 लाइक 3 6 थे, तो मिडिल वाले 2 का कोई भी बड़ा नंबर, सो 70 वाज द बिगर वन, तो इन्होंने 70 को क्या ले लिया, अज्यूम्ड मीन ले लिया। अब 70 को सबसे माइनस किया तो ये इनको नंबर्स मिले। अब देखो ये नंबर्स अभी भी बड़े हैं, क्योंकि अभी मुझे 135 से मल्टीप्लाई करना है 60 को, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो अब इन्होंने क्या किया, इस पूरी लाइन का HCF देख लिया कि हाईएस्ट कॉमन है कौन है, सबके पीछे 0 है तो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, और 6 4 2 है तो 2 से भी डिवाइड होगा। तो 20 इन्होंने एक क्या ले लिया, इनका आई ले लिया, एक नंबर जो कि क्या है 20 है, ठीक है। फिर इस 20 को इन सबसे डिवाइड किया, 20 डिवाइड बाय 3 -3, 20 डिवाइड बाय 40 -2, 20 डिवाइड बाय 20 -1, 20 डिवाइड बाय 21 एंड अब देखो ये नंबर्स छोटे हो गए ना, तो 135 मल्टीप्लाई बाय 3 104, 185। देख रहे हो अभी ये नंबर्स इतने छोटे हो गए, तब भी आंसर्स यहाँ पर कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। तो अगर ये वाला मेथड आपके पास नहीं होता तब आप क्या करते हैं, ठीक है। तो ये आपके नंबर्स आ जाएंगे कौन से वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करके, ये टी और एफ को, तो अब आपका एफ टी निकल रहा है, उसको मल्टीप्लाई करके ये वाले नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। और फिर आप उसको जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों बोला, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, तो इस वजह से ये आ जाएगा। आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी बन रही है 110 एंड मूविंग ऑन। अब देखो अब आपका फॉर्मुला कैसे चेंज हो गया। अज्यूम मीन जब हम लेते थे सबसे माइनस करते थे तो यहाँ पर अज्यूम मीन ऐड होता था, यहाँ तक सबने फॉलो किया था। अब बेटा आपने आई को डिवाइड भी तो करा है, ये तो देखो आपने एक 20 नंबर लिया है जिससे आपने सारे वैल्यूज को क्या किया है, डिवाइड किया है, तो फॉर्मूले में वो इसीलिए सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसे 3 फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो टेक्निकली एक ही फॉर्मूला है। जो आप शॉर्टकट लगा रहे हो उसका उल्टा फॉर्मूले में ऐड कर देना है। आप माइनस कर रहे थे तो अब आपको ऐड कर देना है, आप डिवाइड कर रहे थे तो अब आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सो 70 प्लस माइनस 593 विल गिव यू 110 into 20। दिस विल गिव यू द आंसर 59.32। आप जब इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। 0 से 0 काट दो, उसके बाद डेसिमल डिजिट्स ही डायरेक्ट यूज कर लिया करो, क्योंकि आंसर डेसिमल में ही आना है, तो डायरेक्ट डिवीजन करा करो एंड यू विल गेट द आंसर। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? ओके सो लेट्स विजुअलाइज इट इन अ डेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा हमने चूज किया इसलिए क्योंकि इसमें यहाँ पर आपके ICSE और CBSE बुक्स में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें रेंज दे रखी है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, रेंज दे रखी है डिफरेंट। अब इस रेंज से कैसे बचा जाए, रेंज से हमारा x कैसे निकलेगा, क्योंकि 10 और ये कुछ मल्टीप्लाई करना था ना, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वी आर हैविंग सिंपल फॉर्मूला फॉर दैट, 100 प्लस 120 डिवाइड बाय 2, जो अपर लिमिट है डिवाइड बाय लोअर लिमिट, ओके सॉरी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। This will give you the answer 220 divided by 10, sorry 2 and 110 will be the answer। ये आपका फर्स्ट x आ गया। ऐसे ही आपको सेकंड निकालना है, 120 plus 120 will be 160, sorry 260, 260 divided by 2 130, 140 plus 160 will be 300, 150। अब इसके बाद निकालने की जरूरत नहीं है, कितने का गैप आ रहा है, 20 का गैप आ रहा है ना, तो ऐसे ही 20 का गैप ऐड कर दो, नीचे तक पहुंच जाओ। आई थिंक इट इज क्लियर है ना, ओके। सो इसके बाद आपका देखो x बड़ा आ रहा है ना, वी आर गेटिंग अ बिगर x, सो हमें अज्यूम मीन वाला मेथड पहले फॉलो करना है। तो अज्यूम मीन देखते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7, तो मिडिल वाला आई थिंक 170 है, 170 सबसे आप माइनस कर दोगे, ठीक है। आपका अज्यूम मीन ए जो है वो कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। फिर उसके बाद जब आप 170 से 110 माइनस करोगे तो 60 आ रहा है, 40 एंड 20, तो इसमें भी 20 आ रहा होगा। सो दैट इज वाई आपका जो आई है वो क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। इसने यहाँ पर इसको आई को सी ले रखा है, तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको आप ऐड करोगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका देखो नंबर्स कितने छोटे बन गए, कितने छोटे छोटे नंबर्स बन गए। मुझे मेरा फेवरेट मेथड तो स्टेप डेविएशन मेथड है, क्योंकि उससे नंबर्स बहुत छोटे हो जाते हैं, कैलकुलेशन बहुत रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। बट ये नहीं कि आपको हर क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन ही लगाना है, ठीक है। डेटा को समझो,
रट्टा मारने वाला काम मत करो। जब जिसको एक्स बड़ा आ रहा है तो हमने किया स्टेप, देखो ना, एक्स अगर बड़ा मिल रहा है तो आप सबसे पहले जाओ अज्यूम मीन पे। अज्यूम मीन के बाद भी अगर आपका डी बड़ा आ रहा है तो गो फॉर द थर्ड मेथड। ओके, अगर एग्जाम में मेथड आपको नहीं दिया है कि किस मेथड से करना है, आपको स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, तो प्लीज बेटा रट्टाफिकेशन वाला काम मत करना, समझदारों की तरह काम करना। इफ एक्स आपके बड़े हैं तो अज्यूम मीन मेथड पे जाओ, और अभी भी डी बड़ा आ रहा है तो उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड पे जाओ। ठीक है, रट्टाफिकेशन वाला काम मेरे स्टूडेंट्स ना करें। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग रट्टाफिकेशन वाला काम ना करो, थोड़ा समझदार बनो, समझ के करो चीज़ों को। ठीक है, पढ़ाई मार्क्स तो आते रहेंगे, मेन समझदारी होती है। समझदारी डेवलप कर ली तो मेरे बिना भी सारे क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन। इसमें देखो आपको दो चीज़ें नहीं दी गई हैं। ठीक है, इसमें बेटा मिसप्रिंट है, जो लोग वीडियो पॉज करके करना चाह रहे हैं मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये 5p है। ठीक है, सबसे पहली बात। ठीक है, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ भी चेंज है। ठीक है, तो उनको हम धीरे धीरे करते हैं, और क्वेश्चन मेरे साथ ही करना ये वाला। ठीक है, आई वुड सजेस्ट यू कि ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ ही करो, क्योंकि इसमें काफ़ी डिस्ट्रप्शन है स्लाइड में, तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। आंसर हमें ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। वैल्यूज़ पहले मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि क्या वैल्यूज़ है। पी की वैल्यू निकालनी है, एंड गोल तो यही है कि पी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉलम्स बनाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट काम। तो जिसको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ डू द लाइक एंड कमेंट इफ़ यू वांट सम इम्प्रूवमेंट्स इन द वीडियोस। अगर कोई भी आप लोगों को लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो यू कैन गिव अ पॉजिटिव फीडबैक एंड आई विल वर्क ऑन इट। ओके ओके, सो बेटा यहाँ पर आपका x आ जाएगा, यहाँ पर आपका f आ जाएगा, यहाँ आपका fx आ जाएगा। तो x है आपके 15, 17, 19, 20 प्लस p और 23, और जो f है आपके वो है 2, 3, 4, 5p एंड व्हाट 6। ठीक है, अब इसके बाद आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आगे से खुद कर सकते हो। यहाँ पर सारे वैल्यूज करेक्ट है, यू विल गेट द राइट आंसर। ओके, सो आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज एक बार पॉज करो, डरो मत क्वेश्चन से, जो आपको आता है ना वो करते जाओ। अलजेब्रा तो पढ़ी है ना, तो येलो नंबर से क्यों डरना है? अलजेब्रा पढ़ रखी है तो येलो नंबर से डर के क्या हो जाएगा? ठीक है, तो नॉर्मल सॉल्व करना स्टार्ट करो। एफ एक्स इज 50, 30, 51, 76, दिस विल बी 5p स्क्वायर प्लस 20p। बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए यहाँ पर। ठीक है, ये वाला था 5p इंटू 20 प्लस p था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए तो ये मिल गया 5 इंटू 20 5 इंटू 20 100p, और यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करा। देन मूविंग ऑन, थर्ड वाला 23 इंटू 6 138। सो समीशन f जो आएगा वो आएगा 15 प्लस 5p, और समीशन एफ एक्स जो आएगा, देखा समीशन का कितना अच्छा यूज़ होता है, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं, सम ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये आएगा आपका 295 प्लस 5p स्क्वायर प्लस 100p। ठीक है, ये जो मिडिल वाले नंबर्स हैं इनको एडिशन में काउंट मत करना, ये बाद में प्लस का साइन के साथ लिख दिए जाते हैं। ठीक है, अब आपका बेटा मीन का साइन ये होता है एक्स के ऊपर बार। ठीक है, एक्स पेन का जो साइन होता है उस जैसा होता है वो। समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ इज इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स कितना है आपका 295 प्लस 5p स्क्वायर प्लस 100p डिवाइड बाय 15p प्लस 5p। अब अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो आपको x बार दे रखा है, x बार आपको कितना दे रखा है 20 दे रखा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर 20 लिख दे रहा हूँ। 295 प्लस 5p स्क्वायर प्लस 100p डिवाइड बाय 5p प्लस 15, ये p नहीं, यहाँ पर p नहीं आएगा, 5p प्लस 15। सो नाउ दिस पार्ट विल गो हियर, मल्टीप्लाई होने चल जाएगा, तो 20 इंटू 5p प्लस 15 विल गिव यू 295 प्लस 5p स्क्वायर प्लस 100p. So this will give you
100p plus 300 is equals to 295 plus 5p square plus 100p. तो ये आपका आ जाएगा 5p square is equals to 5, so p is equals to 1. This is your final answer. Okay, p is equals to 1. समझ में आया कैसे फॉलो किया मैंने एक टेबल बनाई, उसके बाद जो हम नॉर्मल काम करते हैं वही किया मैंने, सबको मल्टीप्लाई किया. बेटा ये क्वेश्चन टफ नहीं है, अलजेब्रा आ रही है सिर्फ इस वजह से क्वेश्चन टफ नहीं हो जाता है. आपको जो काम करना है वो करो ना, अलजेब्रा आ रही है से डर क्यों रहे हो? मल्टीप्लाई करने को बोला गया मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन को देख के डर क्यों जाते हो? हैं वैसे तो टीनेज में नई चीजें आती तो हाँ ठीक है, मतलब सर ऊपर पैर नीचे करके, पैर नीचे सर ऊपर करके भी खड़े हो जाएंगे. ओके मैंने उल्टा बोल दिया, सर नीचे पैर ऊपर करके भी खड़े हो जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे. जब अलजेब्रा आती तो डर जाते हो कि नहीं अलजेब्रा आगे तो नहीं करेंगे. अलजेब्रा ही जो आई है, क्यों डर रहे हो? बचपन में सिखाई गई ना कि मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, वैसे ही फॉलो करते जाओ क्वेश्चन को. कुछ था टफ? कुछ नहीं था इसमें टफ. टीचर ने बस यहाँ पर पी पी करके दे दिया, आप डर गए, बस खत्म हो गए, मार्क्स वहीं नहीं आए. सबसे ज़्यादा तो डर हटाओ अपना मैथ्स का, आधी जंग वहीं हार जाते हो जब डर जाते हो. तो आंसर 1 आ रहा है जो मैंने आप लोगों को बताया था. ठीक है, तो मीन आप लोगों का जो रिजल्ट है वो निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपकी सैलरीज एवरेज सैलरी निकालने में काफ़ी हेल्प करता है मीन. ठीक है, तो गाइज ये ही था आज का वीडियो. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. ठीक है, आपके काफ़ी डाउट्स मैंने क्लियर करे होंगे, और जिसको वीडियो पसंद आया प्लीज़ एक स्वीट सा कमेंट छोड़ो. ठीक है, ताकि जल्द और जिसको कुछ प्रॉब्लम लगी हो वीडियो में तो वो भी आप अपना फीडबैक दो, मैं अगली वीडियो में डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा. और जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन अभी नहीं दबाया है प्लीज़ दबा दो, क्योंकि इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा. आई होप मैं उसे जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ ला सकूं. ओके, सो दीज आर द थिंग दैट वर कवर टुडे. और मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को अभी 1 सेकंड के गैप में दे रहा हूँ. वीडियो पॉज करना, उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना और अभी ही कर लेना. ये मत सोचना कि ये तो मैं बाद में करूँगा, क्योंकि अगर आप अभी नहीं करोगे आपके दिमाग से वो वैनिश हो जाएगा और फिर आगे की चीज़ें समझ बिल्कुल नहीं आएंगी. तो ये अगर ये जो चैप्टर है सेंटेंस टेंडेंसी, आई डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड, दैट इज द मीन. मीन आपका कंप्लीट हो चुका है. अगली क्लास में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे. ओके, वो तो अगली क्लास में खैर देखेंगे. ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पॉज करो वीडियो को एंड सॉल्व करने की कोशिश करो. एंड आई एम प्रेजेंटिंग द आंसर्स एज वेल आफ्टर अ 1 second गैप. ओके, सो थैंक यू एवरीवन. दिस इज जागृत साइनिंग आउट. बाय.